آج میں آپ کے ساتھ ٹریڈنگ کے حوالے سے کچھ ایسے اہم سٹیپس شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو آپ اپنے ٹریڈنگ سٹائل میں شامل کر کے اپنی ٹریڈنگ پرفارمنس کو ڈبل کر سکتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں کئی ٹاپکس پر بات کریں گے جن میں عام ٹریڈنگ مسٹیکس جن سے آپ کو بچنا چاہیے، نفسیاتی ترجیحات جو آپ کی ٹریڈنگ کے دوران ہونی چاہیے، اور کچھ رسک اور منی مینجمنٹ ٹپس جن سے آپ اس گیم میں باقیوں سے خود کو تھوڑا آگے رکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اینڈ تک ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ کا مقصد ٹریڈ کرنا ہے اور آپ اس گیم میں کچھ زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو کچھ حد تک کچھ موقعوں پر آپ اپنا پیسہ لوز ضرور کریں گے، اور اگر آپ ٹریڈنگ کا بہترین ایکسپیرینس چاہتے ہیں تو آپ کے پاس رسک کے لیے کچھ زیادہ برداشت یا رسک ٹولرنس ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہوتا، پیسہ کھونے کا خیال بھی انہیں اچھا نہیں لگتا۔ پیسے کھونے کا ڈر زندگی کے کچھ پہلوؤں میں ایک بہترین ایموشن ہے۔ ہمیں اپنی دولت کو سیکیور یا محفوظ بنانا چاہیے، تاہم ٹریڈنگ میں ہمیں پیسے کے ساتھ ڈیفائی یعنی ڈیفینسو اور جذباتی یعنی ایموشنل ہونے کے اس رجحان کو نہ صرف تبدیل کرنے بلکہ ایک الگ مینٹل سٹیٹ میں دوبارہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ٹریڈر کے طور پر پیسے کھونے کا ڈر آپ کو توڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ وننگ سیٹ اپ سے محروم رہ سکتے ہیں اور دوسرا مسلسل خود کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹریڈنگ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ڈر کو فتح کرنا ہوگا۔ خوفزدہ ہونے کے بجائے آپ کو اس خوف پر قابو پانا ہوگا۔ جب آپ اپنے پیسے کھونے کے خوف سے ڈرتے ہیں تو رسک مینجمنٹ کی مدد سے ہر ٹریڈ پر آپ کو اپنے کنٹرول کو بڑھانا ہوگا۔ اپنے پیسے کو مینج کریں، ایک ٹھوس رسک مینجمنٹ پلان کا استعمال کریں۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ آپ ان منفی خیالات کو کم کر دیں گے۔ کچھ لوگ میتھ بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر اس میں ہر سوال کا ایک ہی صحیح جواب ہوتا ہے، لیکن ٹریڈنگ میں جوابات ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کو انسانی جذبات ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت مرتبہ لوگ ایک فارمولہ اپنانا چاہتے ہیں، جیسے اگر میں یہ کرتا ہوں تو کیا میں اس چیز کی توقع رکھ سکتا ہوں؟ اگر RSI 30 پر جاتا ہے تو میں خرید لوں گا۔ اگر میں ایک ڈوجی دیکھتا ہوں تو یہ انڈیسیژن ہے، لیکن مارکیٹ اس کے لیے بہت متحرک ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز ہے کہ کبھی کبھی آپ کے پاس ٹریڈ کے لیے بہترین آئیڈیا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا ایگزیکیوشن پروسیس بیکار ہے تو آپ اپنے پیسے نقصان کر دیں گے۔ یا آپ کے پاس ایک بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن آپ ایک مختلف مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ آپ واقعہ ہی آج دوبارہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو سمجھ لیں اس صورت میں بھی آپ کو شاید دوبارہ پیسہ کھونا پڑے گا۔ جتنا آپ کو اپنے طریقے اور اس کے معیار پر یقین ہے، آپ کو اتنا ہی اس کے ساتھ ڈسپلن رہنا ہے۔ کسی کے پاس بھی کوئی ایسی جادوئی قوت نہیں ہوتی جو ایک انسان کو اس کا فیوچر بتا سکے۔ ٹریڈنگ مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ پاسبل سینیریوز کی مشکلات کی کیلکولیشن سے متعلق ہے۔ پرائسز آپ کے اندازے سے آگے بڑھ سکتی ہیں اور بغیر کسی حقیقی طریقے کے ٹاپس اور باٹمز کو کال کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ کوئی طریقہ یہ نہیں بتا سکتا کہ پرائسز کہاں پر رکیں گی، اور یہ ایک بہت عام سی غلطی ہے۔ آپ کے پاس کوئی لوزنگ پوزیشن ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں پرائس یہاں رک جائے گی اور پھر یہاں سے ریورس ہو جائے گی۔ اس چکر میں اپنی لوزنگ پوزیشن آپ مکمل طور پر لوز کر جاتے ہیں اور پھر آپ الزام اپنے ڈسپلن کو دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ڈسپلن میں کمی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی پرائس میں سپلائی اور ڈیمانڈ کی سمجھ میں کمی کا نتیجہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ٹریڈرز اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ کچھ ٹریڈرز کہتے ہیں کہ ایگزٹ انٹری سے کم اہم ہے، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ٹریڈنگ اسٹریٹجی انٹری سگنلز کی شناخت یا آپ کی انٹری کو زیادہ مؤثر طریقے سے ٹائم کرنے کے لیے زیادہ درست انڈیکیٹرز تلاش کرنے کے طریقہ سے زیادہ ہے۔ ایگزٹس بھی آپ کی انٹری کے برابر کی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کب نکلنا ہے یا اپنے لوس کو کٹ کرنا ہے۔ ایک واضح پلان کے بغیر آپ کے ان فوکسڈ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے اور آپ کے پاس اس گیم میں کوئی چانس نہیں ہوتا۔
जिसमें प्रोफेशनल्स डोमिनेट कर रहे होते हैं। एक एग्जिट प्लान ये फैसला करता है कि आया आप प्रॉफिट लेंगे या नुकसान। इसलिए कोई भी ट्रेड बेतरतीब नहीं होनी चाहिए। आप अपना स्टॉप 50, 100 या $200 पर रख सकते हैं, लेकिन अगर उसका फैसला आपकी बर्दाश्त की बुनियाद पर हुआ है तो फिर ये बेतरतीबी है। आपके स्टॉप्स और प्रॉफिट के लिए टेक्निकल और खास तौर पर प्राइस एक्शन की बुनियाद पर मुनासिब प्राइस लेवल्स का इस्तेमाल आपको बेहतर फैसले करने में मदद कर सकता है। एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको कुछ चीजों की कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। इस सूरत में आप वक्त से पहले ये फैसला करने के काबिल हो सकते हैं कि आया आपको इस ट्रेड में इंटर होना चाहिए या फिर साइड पर रहकर इंतजार करना चाहिए। और याद रखें कि साइड पर खड़े रहना और ट्रेड न लेना भी एक वैलिड ऑप्शन है। आपके रिस्क टॉलरेंस की बुनियाद पर आपको सिर्फ वही ट्रेड्स लेनी चाहिए जो आपको सूट करती हूँ। एक लूजिंग ट्रेड के दौरान स्ट्रेस एक साइन होता है कि आपकी पोजीशन बहुत बड़ी है। आपको मालूम होना चाहिए कि उन सिनेरियोज में फर्क कैसे किया जाए जहां आप किसी खास मुकाम पर मुनाफा लेते हैं या जब कीमतें आपके हक में ज्यादा से ज्यादा जा रही होती हैं। एक आम मसला रैंडम प्रॉफिट्स लेना है। फौरन ही जैसे ही आप प्रॉफिट देखते हैं बुक कर लेते हैं और फिर बाद में आप पछताते हैं कि आपने इंतजार नहीं किया या फिर आपने बहुत इंतजार करके अपने प्रॉफिट्स मार्केट को वापस दे दिए। एक बार फिर ये वो जगह नहीं है जहां आप खुद को देखना चाहते हैं और फिर आप अपने डिसिप्लिन या बर्दाश्त की कमी को मोरद इल्जाम ठहराते हैं, जो अक्सर दुरुस्त नहीं होता, बल्कि ये फैसला करने की आपकी सलाहियत की कमी है कि प्राइस कितनी बढ़ेगी, क्योंकि वक्तन फवक्तन प्राइसेस रेस्ट करती हैं और फिर बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पर आप एक चार्ट एनालाइज कर रहे हैं। आपका तासुब है कि आप जानते हैं कि आप मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन लेना चाहते हैं और आप सिर्फ कुछ कंफर्मेशंस का इंतजार कर रहे हैं। फिर आप खबरों के मज़ामीन पढ़ते हैं जिसमें कहा गया होता है कि शॉर्ट ट्रेड इस वक्त बेहतरीन प्रॉफिट्स दे सकती हैं और आप अपने प्लान पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और फिर बजाय लॉन्ग पोजीशन लेने के आप मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं। फिर आपको अंदाजा होता है कि आप अपनी जगह दुरुस्त थे, मार्केट ऊपर चली जाती है। तो चीज ये है कि आप एक टेक्निकल ट्रेडर हैं। आपको अपने प्लान के साथ जुड़े रहना चाहिए। न्यूज़, यूट्यूब वीडियोस, रेडिट या ट्विटर पोस्ट बड़ी आसानी के साथ आपको अपने टेक्निकल नुक्ता नज़र से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आपने अपनी ट्रेड्स अपने सिस्टम की बुनियाद पर ही लेनी है। इसलिए दूसरे लोगों की राय आपके लिए ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका जवाब है कि इसका इन्हिसार आप पर है। मसला ये है कि बहुत से नए ट्रेडर्स कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाते। डे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग, अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पा रहे तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब देखें, नए ट्रेडर्स हर सिनेरियो को अहमियत देते हैं। प्रोफेशनल्स हमेशा अपनी सोच और पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट हर वक्त बदलती रहती है। इसकी वोलेटिलिटी बदलती है, रेंजेस बदलती हैं, डायरेक्शन और बायस भी बदलती रहती हैं। आप शायद तमाम ओड्स को अपनी फेवर में रखकर एक ट्रेड में इंटर हों, जबकि एक हावर लेटर शायद ओड्स ही बदल जाएं और आपसे एग्जिट का मुतालबा करने लगें। आपको सुकून से बैठकर अपने प्रॉफिट्स को नुकसान में बदलते नहीं देखना चाहिए। आपको फ्लेक्सिबल होना होगा और ये समझना होगा कि आपको वहां पर एग्जिट कर देना चाहिए जहां पर मार्केट की कंडीशंस बदल रही हों। मार्केट का कॉन्टेक्स्ट मूव के साइज को डिक्टेट करेगा और इस चीज को भी कि मूव कितनी देर रह सकता है। तो आपको फ्लेक्सिबल होने और अपने आप को मार्केट में बनने वाली नई सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने की जरूरत है। ये अहम नहीं है कि आप किसी भी अहम चीज के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन ये अहम है कि आप उन चंद अहम चीजों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं जो आपके लिए मुफीद हैं। बिलाशुबा सीखने की हमेशा हौसला अफजाई की जाती है, लेकिन सीखने में सीखना भी जरूरी है कि क्या सीखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में 100% इंडिकेटर्स पर इन्हिसार करता था और मेरे लिए मार्केट को एनालाइज करने के इस तरीके को सीखना काफी मुश्किल था। मैं ट्रेंड को जानने के लिए इंडिकेटर्स की तरफ देखता और उस वक्त इंटर होने के लिए जब तीनों इंडिकेटर्स अलाइन हो जाते। तो इस तरह बहुत बड़े डेटा की तरफ देखना आपके फैसले लेने की सलाहियत को कमजोर कर सकता है। जहां पर हल्की फुल्की अप्रोच के साथ
स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट आपकी कामयाबी के इम्कानात को बढ़ा सकती है। याद रखें, इल्म का मेयार उसकी मिकदार से ज़्यादा अहम होता है और ये जानना कि क्या नहीं करना बाज़ औक़ात नॉलेज या डेटा की बहुत बड़ी मिकदार को जमा करने से बेहतर होता है। मार्केट के सबसे ब्रूटल एस्पेक्ट्स में से एक इसकी वोलेटाइल नेचर या गैर मुस्तहकम फितरत है। मार्केट साइडवेज भी हो सकती है और फिर टाइम के कुछ पीरियड के लिए ट्रेंड भी कर सकती है और फिर बगैर किसी वार्निंग साइन के ये दोबारा साइडवेज मार्केट में जा सकती है, जो ट्रेड करने के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है, खास तौर पर ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स का एक दूसरा ग्रुप हो सकता है इस साइडवेज प्राइस मूवमेंट का इंतजार कर रहा हो और यही वो पॉइंट है जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हर वक्त मार्केट की उन कंडीशंस को समझने की कोशिश किया करें जिसमें आप ट्रेड करने जा रहे हैं। एक ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट की वजाहत उसी तरह से करेगा जिस तरह उसको डिजाइन किया गया है। मिसाल के तौर पर आप एक मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी पर इन्हिसार कर सकते हैं जो आपको एक डोमिनेंट ट्रेंड के अंदर माइनर पुल बैक्स पर एंट्री पॉइंट्स दे सकती है, या आप एक स्कैल्पर हो सकते हैं जो एक रेंज के अंदर शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से फायदा उठाना चाहते हो, या शायद आप रिवर्सल कैच करने की कोशिश करते हो जिसका मतलब है कि आप बड़ी स्विंग ट्रेड्स तलाश कर रहे हैं। पॉइंट यह है कि कुछ ऐसे फेज भी आते हैं जब आप सिर्फ एक्शन से लुत्फ अंदोज होते हैं। यकीनी बनाएं कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको इस बात की इजाज़त दे। इस बात को यकीनी बनाने का एक अच्छा तरीका ये है कि आपके पास एंट्री का एक सख्त क्राइटेरिया हो जो आपको ज़्यादातर हिस्से के लिए मार्केट के महसूस हालात पर कायम रहने की इजाज़त दे। एक आम गलती उस वक्त होती है जब ट्रेडर्स अपने एहसासात को इस्तेमाल करते हुए एक ट्रेड को जस्टिफाई करते हैं, जहां वो वक्त से पहले मार्केट में एंटर हो जाते हैं और वो अपने ट्रेडिंग रूल्स को तोड़ देते हैं और फिर वो कहते हैं कि इनको फील हो रहा था कि प्राइस यहां से पंप होने वाली है और वो ट्रेड मिस नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जरा सोचें कितनी बार ऐसा असल में हुआ है। इसलिए अपने वजदान या अपनी फीलिंग्स को अनडिसिप्लिन ट्रेडिंग के साथ मत उलझाएं, क्योंकि बड़े नुकसानात का सबब ही यही है। ट्रेडिंग के तरीकाकार में तशरीह के लिए जितनी ज्यादा गुंजाइश होगी, ट्रेडर ट्रेड के जवाज के लिए वजदान या गट फीलिंग का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जिससे बचना बहुत जरूरी है। ये वजदान या गट फीलिंग सिर्फ एंट्री के वक्त ही अपना किरदार अदा नहीं करती, बल्कि इसकी जड़ें बहुत दूर तक जाती हैं। इसको आप लूजिंग ट्रेड्स में ज्यादा देर रहने के लिए भी जस्टिफिकेशन के तौर पर पेश कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको एहसास होने लगता है कि प्राइस आपके खिलाफ जाने वाली है, लेकिन आप इंतजार किए ही जाते हैं और यही वो वक्त होता है जो मेजर लॉसेस का पेश खेमा साबित होता है। अगर चाहे ट्रेडर्स इसे वजदान कहते हैं, लेकिन एक बार जब आप लूजिंग ट्रेड में चले जाते हैं तो आपका दिमाग ऐसी वजूहात तलाश करना शुरू कर देता है जिनसे आपको इस लूजिंग ट्रेड के बारे में नेगेटिव फीडबैक ना मिले और आप इस ट्रेड को क्लोज ना करें। असल वजदान या इनर फीलिंग एक्सपीरियंस के कुछ सालों बाद हासिल होती है। ये उस वक्त होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली पैटर्न्स को डिटेक्ट करना शुरू कर देता है, जब आप स्क्रीन के सामने 1000 से 10,000 घंटे गुजार चुके होते हैं और मार्केट के कई मूव्स आपकी आंखों के सामने से गुजर चुके होते हैं। यह आपकी इनर सेल्फ का एक हिस्सा बन जाता है। आप इसे वजदान कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये कुछ नहीं, बस आपके सबकॉन्शियस यानी लाशऊरी दिमाग की मार्केट पैटर्न्स की पहचान होती है, जिसे आपने पहले कई मरतबा देखा होता है। जब बात ट्रेडिंग डिसीजन लेने की आए तो नए ट्रेडर्स को इस टर्म से दूर रहना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको बहुत अहम बात बताने लगा हूँ। देखें, मंतकी यानी लॉजिकल और ज्यादा अक्ली लोगों को ट्रेडिंग करते वक्त मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट्स ज्यादातर वक्त इर्रेशनल यानी गैर माकूल होती हैं। एक मंतकी शख्स अक्सर जवाबात तलाश करता है कि बाज प्राइस मूवमेंट्स क्यों होती हैं, लेकिन मार्केट अक्सर खौफ और लालच जैसे जज्बात से चलती है। ट्रेडिंग स्कूल की तरह नहीं है जहां पर आप सख्त पढ़ाई करेंगे और ये सोचेंगे कि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। गैर माकूल मार्केट में बहुत ज्यादा मंतकी होना ट्रेडिंग में नुकसान का बायस हो सकता है। आप वाकयात के होने से पहले उनके नताइज को नहीं जान सकते, इसलिए आप इम्कानात को ही मद्देनजर रख सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।